Slide 9. जी सर. Okay, topic today is growth disorders. Let me clear one thing from the start, that this is the topic is not growth hormone. The topic is not growth hormone. The topic is growth disorders. ठीक है? So there is some meaning to that, because short statureness has got many other causes. People forget, and they whenever a short child appears in the family, and the doctor sees it or GP sees that child, he or she immediately advises growth hormone, especially when they refer to FIP. They simply write growth hormone test. So it is not like that, should not be like that. And we will discuss it in today's lecture too. So at the end of this lecture, at the end of this lecture, students will be able to briefly describe growth disorders and their laboratory aspects. So mainly, we will discuss the laboratory aspects. That means how to proceed with the short stature child, and how to proceed with the patient suspected of acromegaly. Of course, we are laboratory persons, but we have to go according to the scientific method, latest evidence-based method, which should be adopted while investigating these two kind of patients. So when we say growth disorders, it includes growth hormone deficiency or short statureness, and patients suspected of acromegaly or gigantism. So these two are the main sub headings of today's talk. Next. It is said, first we will discuss the physiological aspects related to the growth of a child. It is said the growth of the child follows rules of 5. That means from birth to 1 year, it is 25 centimeter per year. From 1 year to 4 year, roughly the growth should be 10 centimeter per year. And then 4 year to 8 year, 5 centimeter, and 5 centimeter up to 12 years. So it is very rapid in the first year of life. It is 25 centimeter per year. And it should be called not height, rather the length. So that's why it is called length or height. In the first year, we call it length of the child. And from first year to 4 years, it is normally it should be 10 centimeter. And then after that, it should be 5 centimeter per year. This is the physiological rule of 5 for the growth of the child. All of the following substances cause stimulation of growth hormone, except this was the first question, and the answers I received and I saw them, they were almost 100% correct. Now let's revise. Shujat, what you have written? Glucose. Yes, it is the best answer, correct answer. It is all other substances, they stimulate growth hormone. Arginine, clonidine, glucagon, insulin, they stimulate growth hormone. I have not touched the physiological aspects of growth hormone or the growth, because that makes the lecture too lengthy. So I had those slides, but then I omitted them. But before the start of the actual topic, let me tell you a very important, very nice, useful advice. In your career, especially if you are a chemical pathologist, you'll be referred many times short stature children. माइन लाती हैं कि बच्चा छोटा है, हालांकि बच्चे के वाले साहब भी 4.5 फुट के होते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि बच्चा फिर भी छोटा है.
ठीक है। और अब ये जो शॉर्ट स्टेचरनेस है, ये इट्स रियली वरिंग, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट सोशल एस्पेक्ट फॉर द फैमिली। अगर लड़की भी छोटी हो या लड़का का कद छोटा हो, इट्स रियली अ वरिंग थिंग। लेकिन इसकी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स और भी हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी मेरे पास आते हैं बच्चे शॉर्ट स्टेचर के, and if they are from poor background and they are not supported from the government resources, I mean they are not entitled patients and they are very poor patients, then it really hurts us. Because why? Because the treatment is available, no doubt it's very nicely available, growth hormone replacement therapy, but it's very, very costly. No, the family which has got good resources even can't support it. So it is one feels very sad to investigate it, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, आप टेस्ट उसके फ्री कर देंगे, लेकिन फिर क्या होगा अगर निकल आई डेफिशिएंसी? फिर तो बहुत बड़ा टॉर्चर है कि आप उसको ट्रीट कैसे करोगे, वो कहाँ से लाएगा। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं, लेकिन इट इज इन लैक्स पर ईयर, हाँ 3 lakhs पर ईयर, और अंटिल प्यूबर्टी यू हैव टू गिव इट। ठीक है, तो और अगर नेचुरल रिसोर्सेज से भी मिलना है आपको तो वो भी थोड़ी ज्यादती है, क्योंकि जहाँ पे आपके इतने और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डायरिया चल रहे हैं और चीजें चल रही हैं, तो इट इज नॉट ए लाइफ सेविंग थिंग। तो एक ठीक है, आप जो भी हेल्प कर सकते हैं करें, लेकिन एक मैं आपको बताऊं, ये उसकी रीश्योरेंस के लिए आप उनको 4 चीजों की एडवाइस करें उसकी माँ को। ठीक है, एंड दैट रियली वर्क्स। ये सिर्फ खाली रीश्योरेंस नहीं है, दैट रियली वर्क्स। तो वो 4 चीजें क्या है? वो चीजें हैं जो फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेंट हैं ग्रोथ हार्मोन के, विच आर फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेंट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। यार इसका माइक तो ऑन करो। One is sleep, proper sleep. Tell them that the child should have proper 8-hour sleep at night. यानी अगर 9 बजे सो जाएं और 5 बजे उठें, या 10 बजे सो जाएं और 6 बजे उठें, they should have proper 8 hours, no television, nothing else, and the children should have proper 8 hours sleep. The sleep is a very important stimulant of growth hormone. Second, they should have proper exercise. And by exercise, I don't mean table tennis. By exercise, even I don't mean cricket. Exercise means the games which involves extensive running, football, hockey, the games like this, maybe for 1 hour. You should not never try to omit their sports hour. ये माएँ बैठी हैं यहाँ पे बहुत सारी, जब एग्जाम आ जाते हैं उन पे पाबंदी लग जाती है, मार्शल लॉ लग जाता है कि अब आपका गेम आर नहीं है। ये ना करें, उनको गेम जरूर खेलने दें। ठीक है, जो और प्रॉपर गेम खेलें, मुझे आके 1 घंटा जरूर खेलें, और ये भी चेक करें कि वो ऐसी गेम खेल रहे हैं जिसमें रनिंग इन्वॉल्व है, बिकॉज एक्सरसाइज इज अ बिग स्टिमुलेंट फॉर ग्रोथ हार्मोन। हम यहाँ पे जो टेस्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन का, उसमें उसके लिए हमने ट्रेडमिल रखी है, और वी आस्क द चाइल्ड टू रन फॉर 20 minutes ऑन दैट treadmill, and then afterward we take the sample. So second big stimulant is exercise, and these two things they do not cause any money. Sleep is free, exercise is free, कोई इसमें एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं है। तीसरी चीज में मे भी कुछ एक्सपेंस इन्वॉल्व हो, लेकिन वो भी करनी चाहिए जरूर, एंड दैट इज हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट, जब जो बच्चा है उसके लिए कोई ऐसा परहेज नहीं कि बीफ नहीं देना उसको, मटन रेड मीट नहीं देना, बच्चों को तो देना है। ठीक है, आप खुद लेना लें, लेकिन बच्चों को जरूर दें आप रेड मीट। ठीक है, उनको रोज थोड़ा सा कबाब या कोई ऐसी चीज रेड मीट जरूर दें, ताकि प्रोटीन जाए उनमें, और प्रोटीन इज अ बिग स्टिमुलेंट फॉर ग्रोथ हार्मोन। वी डू अ टेस्ट, ये जो आर्जिनिन है दिस इज प्रोटीन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज स्टिमुलेंट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। चले इस क्वेश्चन को देख के, और मेरी टॉक जब जितनी हुई है, डाइट में क्या चीज उनकी आप कम करेंगे बच्चे की? ग्लूकोज, मीठा, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स,
ठीक है, एनीथिंग मेड ऑफ शुगर, ठीक है, ये मुश्किल काम है लेकिन ये भी करना है आपने। वन और ठीक है, कभी स्वीट्स एक आध ले ली, लेकिन जो बच्चे एक्सेसिव हैबिट में चले जाते हैं चॉकलेट्स वगैरह खाने के, दैट इज ऑल्सो इनहिबिटरी फैक्टर टू द ग्रोथ, ठीक है। और चौथी चीज भी खास और मदर्स से रिलेटेड है, वो ये कि डोंट पुट देम ऑन एक्सेसिव स्ट्रेस, कि आपने फर्स्ट आना है जरूर, ठीक है। वो बेचारा सेकंड भी आ जाता है तो उनको मार पड़ती है घर से कि सेकंड क्यों आए हो, फर्स्ट क्यों नहीं आए, ठीक है। तो ये नहीं करना आपने, उनको एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं देना, ठीक है। और ख़ास तौर पे बेटियां मैंने देखा है, उन बेचारियों पे बहुत वो वैसे भी बहुत पढ़ने वाली होती हैं, कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है, तो वो अगर आप अलाउ करें तो मैं छोटा सा लतीफ़ा सुना दूँ। काफ़ी दिनों से कोई लतीफ़ा नहीं सुना है। वो ये कि एक दफ़ा कॉलेज में रिज़ल्ट आया, तो एक वो समझ लें कि को एजुकेशन का कॉलेज था, तो एक लड़की रो रही थी ना रिजल्ट कार्ड पकड़ के, तो एक लड़का गुजरा, तो उसने कहा तुम क्यों रो रही हो, कहते मेरे मार्क्स कम आए हैं। तो लड़के ने पूछा कितने मार्क्स आए हैं, उसने कहा 93% सिर्फ आए हैं मेरे। तो लड़के ने कहा इसमें तो 3 लड़के पास हो जाते। तो तुमने इसमें क्यों रो रही। तो ये जो है एक बहुत ही कंपटीशन सा हमारे सोसाइटी में आ गया। the road on which I live, there are several academies, KIPS and Global and those academies. And if I get late from the office after 4 o'clock, you can't even pass from that road, because all the parents are there to collect or drop their children, and mainly daughters, about 90% daughters. मैंने कहा ये सारी फ्यूचर की जो है ना, ये डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। तो ये स्ट्रेस नहीं करना उनको, बच्चों को, ठीक है। ठीक है, आपको कोचिंग करें आप साथ साथ का, लेकिन ये स्ट्रेस भी नेगेटिव होता है, स्ट्रेस भी नेगेटिव होता है ग्रोथ के लिए। तो 4 चीजें क्या क्या मैंने बताई हैं, आप उनको एक्सरसाइज, स्लीप, हाई प्रोटीन डाइट, और उसके साथ ही लो कार्ब, कार्बोहाइड्रेट। कार्ब का मतलब नेचुरल कार्ब्स नहीं है, बल्कि ये जो चीनी वगैरह की चीजें हैं जी, और ज्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं करना आपने, ठीक है। तो विद दैट वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट करें, चले आगे, चले आगे। we straight away go to the short stature. Next. हाँ ठीक है, ठीक ठीक। Yes. Short stature, these slides were sent to me when we were doing DLP by Dr. Sibia from Canada, and I honor her name here. So short stature is defined as height that is 2 standard deviation or more below the mean height for children of that sex and chronological age in a given population. ठीक है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट। हर बच्चा जो वो, मुझे कई दफा ये होता है कि लड़का आया 10 साल का और मेरे से भी लंबा है, और माँ कह रही है कि वो शॉर्ट है क्योंकि उसका बाप 6.5 फुट का। तो so we define short stature. There is a definition of short stature: less than 2 SD, या बाजू का less than 2.3 percentile कहते हैं, या less than 3rd percentile कर लें, हम usually less than 3rd percentile कहते हैं, ठीक है। परसेंटाइल से मतलब होता है कि इफ यू रैंक ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द पॉपुलेशन, अगर आप रैंक कर लें उनको, यानी सबसे लंबे बच्चा 100 पे हो और सबसे छोटा 1st पे हो, तो जो बच्चे की हाइट 3rd पे है, 3rd रैंक पे है, उससे नीचे वाली हाइट के बच्चों को हम लेंगे सिर्फ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, ठीक है, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा, ये डॉक्टर साहब जुबिया ने भेजा था, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ शॉर्ट स्टेचरनेस। सबसे पहले निग्लेक्टेड चाइल्ड, अलोन चाइल्ड, ठीक है, ए से ABCD से है निग्लेक्टेड चाइल्ड। इसमें आप कोई भी साइकेट्रिक कंडीशन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिकेट्स, स्कोलियोसिस यानी बोन डिस्प्लेजियास,
Turner syndrome, Down syndrome यानी chromosomal abnormalities, delayed growth. Delayed growth का मतलब है कि there is no endocrine problem. You will see it. जी कुछ कहना है? Delayed growth का मतलब है there is no endocrine problem. Then endocrine problems, which include growth hormone deficiency, hypothyroidism, Cushing, etc. Familial growth delays or growth, familial short statureness, it's again not an endocrine problem. And J malabsorption, which is celiac disease and Crohn. So it is nice ABCD. If you want to remember by mnemonics, it will help you doing that. मैं वो क्या करता हूँ, now I know my ABC. ठीक है? Okay. Next, questions to be answered for evaluation for short stature. तो जैसे मैंने अपने preamble में कहा था कि short stature doesn't mean growth hormone deficiency. You have to investigate thoroughly the cause of the short stature, because sometimes the cause is very trivial. Sometimes the cause is very easy to treat. Instead of giving, uh, just I give you an example. Would you like to give growth hormone of which is costing 3 lakhs per year, or thyroxine, which just costs 100 rupees for 100 tablets? And you know, this hypothyroidism is a very important cause of growth, short statureness. So it will be a blunder not to exclude hypothyroidism and straight away starting with the growth hormone. ठीक है, अगर हमारी लेबोरेटरी जो है ना एक पैसिव किस्म की लेबोरेटरी हो, जो सिर्फ जो लोगों ने एडवाइस कर दिया वो करके भेज दें, तो फिर ये ब्लंडर्स हम करेंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट दैट पैसिव, and we have discussed with the child specialist top level, and they agree with our protocol that do not do growth hormone directly, even if it is advised by a senior specialist. इधर से मेरे ख्याल आपने तार हिला दिया है ना. तो ये इसलिए आपने अच्छी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करना है. इसके एक प्रोटोकॉल आपने बनाया हुआ है, इन जो टेस्ट आपने करने हैं. आप लोग जरा 2 मिनट के लिए इंतजार करना पड़ेगा. प्लीज डोंट एंड प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस स्मॉल ब्रेक. वो इसमें सर
ये नहीं यार जी So I was telling you that whenever a short stature child comes to you or is asked in the exam, do not jump to the growth hormone investigation. First, you very first thing you have to ascertain is that whether the child is really short or not. Don't believe on the parents. The parents may call their kids short even if they are properly grown ups. So the criteria is less than 2.3rd percentile or less than third percentile. You consider those children for growth hormone investigation only if they are less than third percentile. Okay, you may do preliminary investigations like we will discuss shortly. कौन सी investigations आप preliminary कर सकते हैं, लेकिन हाँ लेकिन आप उसको ग्रोथ हार्मोन के लिए बिल्कुल कंसिडर नहीं करते. तो ये हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी इसका डिस्कस किया. So there is a long list and we will again discuss them. Then you have to ask some questions. The first question is, was there IUGR? IUGR means intrauterine growth retardation. This is a very important question. What was the height or what was the length of the child at birth? Is the growth proportionate? Why it is significant to us? Why it is significant to us this question? There are some growth deformities which have got dysmorphia features. Dysmorphic का मतलब क्या है? Can anybody give an example of a dysmorphic growth? आप लोग बेशक इसमें लिखें जी. Achondroplasia. ठीक है, achondroplasia में what is the main, how will you differentiate a person or a child with achondroplasia from other short statureness? एक मिनट जी सफिया, एक मैं कॉल जी सर. सर वो मीटिंग मंडे को होगी इंशाल्लाह जी, आज नहीं है सर. वो बस कोई थी अपॉइंटमेंट्स वगैरह, मैं आज निकाल दूंगा उसका लेटर इंशाल्लाह जी. इंशाल्लाह थैंक यू. ओके, सो इज द ग्रोथ प्रोपोर्शनल. अब एकोंड्रोप्लेजिया को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सफिया? हाँ जी, क्या चीज शॉर्ट होती है तो आप कैसे पता चलेगा आपको? नहीं, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि लिम्स जो है वो लॉन्ग है और ट्रंक शॉर्ट है? जी, कुछ चले माइक खोल के कोई बताए. आर्म्स स्पैन, हाँ आर्म्स स्पैन, हाँ आर्म स्पैन देख लें उसका. या फिर अगर उसको कहें ना अपनी नॉर्मल जो आपकी टिप ऑफ दी थंब है, जब उसको पूरा स्ट्रेच करते हैं तो मिड थाई तक जाता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाता. तो इन एकोंड्रोप्लेजिया में इट में गो अप टू द नी और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो सबसे पहला आपने ये डिफरेंशिएट करना है कि एकोंड्रोप्लेजिया या और इस तरह की चीज तो नहीं है. फिर इसके अलावा माइक्रोकेफेली को रूट आउट करना है, उसकी कॉजेज अलग होती हैं. असल में बहुत सारी चीजें हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस है जिसमें काफी ज्यादा डिस्मोर्फिया होता है. तो सेकंड क्वेश्चन इज द ग्रोथ प्रोपोर्शनेट, एंड द थर्ड इज व्हाट इज द ग्रोथ वेलोसिटी. ये बड़ा मुश्किल काम है. ये हमें एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग इसको नहीं करते बल्कि वो डायरेक्टली हमारे पास भेज देते हैं. तो ग्रोथ वेलोसिटी का मतलब ये है व्हाट इज द ग्रोथ पर ईयर. ठीक है, एक साल में कितनी ग्रोथ हुई है. ग्रोथ चार्ट मेंटेन करना पड़ता है बच्चे का. तो साल थोड़ा ज्यादा है तो हम 6 मंथली करते हैं इसको. तो रफली जैसे मैंने आपको शुरू की स्लाइड दिखाई थी रूल ऑफ 5 में, फर्स्ट ईयर में 25 सेंटीमीटर, देन सेकंड ईयर में 10 सेंटीमीटर एंड देन सब्सिक्वेंटली 5 सेंटीमीटर. तो उसका हाफ करके आप 6 मंथली उसको कर सकते हैं. तो ग्रोथ वेलोसिटी मॉनिटर करना इज वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है. ठीक है, तो लास्ट इसमें क्वेश्चन है कि बोन एज कितनी है. बोन एज करने के लिए
X-rays, we require the help of the radiological investigation, that is X-ray of the wrist. कौन सा रिस्ट करते हैं, राइट या लेफ्ट जी? जी नॉन डोमिनेंट, ठीक है, वो करते हैं, और उससे आप बोन एज, सिर्फ रिस्ट का एक्सरे अगर आपके पास आ जाएगा तो वो यूजलेस होगा, बिकॉज वी कांट डिटरमिन द एज, वी रिक्वायर रेडियोलॉजिकल ओपिनियन. सो उससे लिखवा के लाएं कि इसकी रेडियोलॉजिकल एज कितनी है, ठीक है, इसकी भी सिग्निफिकेंस है. Then we come to the question number 2. In children with short stature, growth hormone can be assessed by. जी नहीं, ये सबसे उधर तो है जी. निदा बेटा आप बताओ. बी, लीवोडोपा. तो आपने सर्च की थी? हाँ, वेरी गुड. ये अभी हम डिस्कस करेंगे. लीवोडोपा इज वन ऑफ द स्टिमुलेंट, ये फार्माकोलॉजिकल एजेंट है विच इज अ स्टिमुलेंट फॉर द ग्रोथ हार्मोन, एंड देयर इज अ प्रोटोकॉल फॉर डूइंग दैट, एंड देयर आर मेनी अदर आल्सो. लीवोडोपा की बल्कि स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी बड़ी कम है, तो वी आर थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग इट. All the other tests are nothing to do with the growth hormone stimulation. Question number 3. A 5-year girl has presented in a rural dispensary of Pakistan with height and weight less than 2nd percentile and 3rd percentile respectively. Which of the following condition is most likely cause of short stature in this girl? ये नॉन केमिकल पैथोलॉजी. नूर चैट में आ रहे हैं जी सर, मेरे पास चैट आ नहीं रही. डेल्टा आ रहा है. मैल न्यूट्रिशन, वेरी गुड, एक्सीलेंट. ये मैल न्यूट्रिशन, नूर, व्हाट आर द क्लूज फॉर रूरल एरिया से? वेरी गुड. ऐसे नहीं लिख दिया, नॉट जस्ट फॉर फन नहीं लिखा जाता क्वेश्चन में. यूजुअली मोस्टली क्वेश्चंस में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसका कोई मतलब होता है. पुअरली डिजाइन क्वेश्चन है तो वो अलग है, लेकिन आइडियली क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका कोई ताल्लुक होता है उस पूरे ऑप्शन से. जी, तो एक तो रूरल डिस्पेंसरी है, और क्या इसमें क्लू है? वेट, वेरी गुड. अगर बच्चे का वेट भी कम है तो दैट गिव्स यू अ क्लू कि प्रोबेबली द कॉज इज नॉट ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी or other endocrine. It is something to do with the malnutrition. और सेकंड कॉज क्या हो सकती है? नहीं, हाइपोथायराइड नहीं. फेमिलियल में वेट क्यों कम होगा? मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है. और इसमें आप सीलिक डिजीज को जरूर रूल आउट करें. सीलिक डिजीज जो कि जिसमें मैल एब्जॉर्प्शन होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, ठीक है. चलिए, अब इस नेक्स्ट जो है ना, एक छोटा सा टास्क है कि राइट 10 नॉन ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड कॉजेज ऑफ शॉर्ट स्टेचरनेस. ठीक है, जो आपकी जनरल नॉलेज है उसमें आप 10 कॉजेज लिखें, अपनी स्पेशलिटी की भी लिखें, हेमेटोलॉजी की और माइक्रो की, जो शॉर्ट स्टेचरनेस हो सकती है. नहीं, उसमें ग्रोथ हार्मोन का नाम ना आए, ठीक है. नहीं, जो भी आपको नजर, जो आपकी जनरल नॉलेज है. यू हैव 1 मिनट. आप लोग चैटिंग में लिखते रहें, 2 3 जितनी आपको आती हैं. आ रही हैं, दड़ आ रही हैं. Constitutional there. हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशनल, फेमिलियल और टर्नर, रीनल डिजीज, मैल एब्जॉर्प्शन, hypothyroidism, good, genetical, रीनल. चलें, ठीक है, गुड जी, गुड. तो इधर से बताइए आप, दो बताते रहे. अगर आपने कोई डिफरेंट लिखी है तो बताइएगा. जो उसने लिखी है कॉज, वो नहीं बतानी है. अच्छा जी, शुजात आप एक बता दो जी. मैल न्यूट्रिशन. चले नेक्स्ट, जल्दी. हाइपोथायराइडिज्म जी. GRDs जी.
अच्छा, टर्नर सिंड्रोम, जुबा, एनीमिया, गुड, क्रोहन्स हो गई ना, वो भी हो गया, वो भी हो गया, फेमिलियल शॉर्ट टीचर जी, कॉन्स्टिट्यूशनल, चले रैंडमली बता दें, वेरी गुड, चलें ठीक है, रीनल, हाँ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया कितने हैं जी हेमेटोलॉजी वाले, थैलेसीमिया वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, थैलेसीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, ठीक है, किसने बोला था, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, गुड। सो इसमें मैल न्यूट्रिशन हमने डिस्कस की है, इट कैन बी ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, इट कैन बी ड्यू टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी, स्टीरॉयड ले रहा हो बच्चा, फॉर एग्जांपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, स्टीरॉयड ले रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ अफेक्टेड होती है। अब ये बड़ी स्टुपिडिटी होगी कि पता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, पता है कि वो स्टीरॉयड ले रहा है और उसका ग्रोथ हार्मोन आप कर रहे हो, फॉर गॉड से व्हाई, पहले उसको ट्रीट तो होने दें, उसको इसको स्टीरॉयड हो, फिर मॉनिटर करें, फिर आप करें। रीनल डिजीज, अच्छा अब रीनल डिजीज कौन सी है, रीनल है या इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड है, उसकी एक आप इसमें लिखी भी हुई है बहुत सारी, लेकिन कौन उसकी एक बहुत क्लियरिंग एग्जांपल केमिकल पैथोलॉजी वाला देगा, इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड डिजीज है जो, हाँ इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड है, बार्टर है और आरटीए है, आरटीए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब आरटीए, बार्टर और इस तरह की सारी जो चीजें हैं, इसको आप करने के लिए एक उसका इलेक्ट्रोलाइट जरूर टेस्ट करें, सो यूरिया भी करें, और देयर शुड बी गुड इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है, जैसे मैं कहा करता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स को ऑनर दें, उनको सेपरेट करें ग्रीन ट्यूब में, लिथियम एप्रीन में, प्लीज डोंट डू इट एज ए रिचुअल, उसको रिचुअल के तौर पे यूसीई यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ना करें, उसको सेपरेटली करें, क्योंकि हो सकता है बच्चे में आरटीए हो सकता है बच्चे में, अभी कल परसों हमने बार्टर डायग्नोज किया बच्चे में, तो बल्कि वो ऑफिसर का बच्चा था, जी करण नहीं है नाम तो बहरहाल ये डिजीजेज होती हैं, और इसको आप, ये भी शॉर्ट स्टेचर की कॉज है। फिर उसके बाद कैल्शियम एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, शायद वो लिस्ट में भी आएगा, हाँ कैंसर्स हो सकते हैं बच्चों में, ठीक है। फिर उसके बाद पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, ये एस्थमा, एस्थमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कई दफा कि वो हाइपोक्सिया चल रहा होता है बच्चों में, पूरी तरह ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती, जी जी कुछ कहना है किसी ने, ओके। सिस्टिक फाइब्रोसिस, बच्चा वैसे बहुत वो सिक होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की खास करेक्टरिस्टिक है वेरी हाई मोबिडिटी, वेरी हाई मोबिडिटी, बच्चा बहुत बीमार होता है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे छोटी बच्ची शेयर की थी, याद है आपको, सिस्टिक फाइब्रोसिस की, तो परसों उसके फादर का बड़ा सैड मैसेज आया था कि दैट गर्ल हैज एक्सपायर्ड, तो इनकी मोर्टेलिटी भी बड़ी हाई होती है। वो जब हमारे पास आई थी उस वक्त भी बेचारी काफी सिक थी। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जाहिर है ग्रोथ उसको तो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो ग्रोथ वैसे ही कम होगी उसकी। कार्डियक कॉजेज होती हैं बच्चे में, ये जो वैल्वुलर डिजीजेज हैं, हाँ साइनोटिक हार्ट डिजीज, वैल्वुलर डिजीजेज वगैरह उससे हो सकती है। जीआई हमने डिस्कस किया, आप लोगों ने बताया था, क्रोहन्स डिजीज वगैरह, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज, नूर ये बहुत सारी जो ये आपके हैं इन्फेक्शन हैं, ये जो और क्या होती है वो प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी, सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी, उसके अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, ग्रोथ दायरा उसमें अफेक्टेड होगी। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन कॉजेज, मेटाबॉलिक में बहुत सारे बच्चों में आईएमडीज या इनबॉर्न डिसऑर्डर्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के, टाइप 1 डायबिटीज, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन नॉट ओनली विटामिन डी डेफिशिएंसी बल्कि विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स भी हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म, और फिर आप हाइपो ये जो दूसरा अदर देन ग्रोथ हार्मोन हाइपोपिट्यूटरिज्म है, उसमें भी हो सकता है, हाइपरकॉर्टिसोलिज्म हो सकता है। So long list of disorders which can cause short stature, or some of them are really life threatening. आप वो लाए हुए हैं बच्चे को कि इसका कद छोटा है, ठीक है, और आपने भी चुप करके उसका ग्रोथ हार्मोन कर दिया,
तो you did a crime. If you have not thoroughly investigated the cause of, maybe you are a child specialist, maybe you are a pathologist, excuse me, it's your duty to find the exact cause of short stretchedness, not do the test only. So it may be a very trivial test which can give you a clue. For example, electrolyte, for example, HV, just anemia. जैसे मैंने बताया थैलेसीमिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, ठीक है, कोई भी इस तरह की चीज हो सकती है एंड जो कि अदरवाइज लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब इसी से जो आपने सारी कॉजेज पढ़ी हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एक एंडोक्राइन क्लिनिक में रूटीन वर्किंग डे पे 5 चिल्ड्रन आए हैं। हमारे रोज के कितने बच्चे आ जाते हैं शॉर्ट स्ट्रेचर के? 4-5 तकरीबन। वी रिसीव 4-5 चिल्ड्रन, और जब हमारे उससे क्लिनिक के करीब से गुजरे तो ट्रेडमिल चलने की आवाज आ रही होती है, तो उससे पता चलता है बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। तो देर क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया गया और उसके कुछ बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट किए गए। अब उसमें से कौन सा बच्चा आप सिलेक्ट करेंगे फॉर ग्रोथ हार्मोन स्टडीज टेस्टिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था और ये आप लोगों ने आंसर आ रहे हैं आपके धड़ाधड़ माशाल्लाह। डी 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 डी, आप लोग क्या कहते हैं? डी, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये डी आंसर है इसका। लेकिन क्या फिलॉसफी है इसमें, ये मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए जो बच्चा है उसमें तो हाइट उसकी that doesn't qualify that child for undergoing growth hormone, not at all। बाकी जो मर्जी हो, जब उसकी हाइट ही 20th परसेंटाइल है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आप ये नहीं है कि उसको धक्के दे के निकाल दो, उसको उसके आप बाकी टेस्ट जरूर करो, उसके HB करो, TSH करो, आप उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स करो, और चीजें भी कर लो, एंटीग्लाइडिन एंटीबॉडी या वो दूसरी एंटीबॉडी जो आजकल नई आई है TTG, NTTTG, वो उस सूरत में करो अगर उसके सिम्टम्स हैं डायरिया के। ऑफ कोर्स हर बच्चे में तो नहीं कर सकते, वो एक्सपेंसिव टेस्ट है, तो अगर उसकी डायरिया वगैरह की एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स की हिस्ट्री है देन यू मस्ट डू दैट आल्सो, ठीक है। हाइट 31st परसेंटाइल, नो नीड टू डू। हाइट 35th परसेंटाइल, नो नीड। हाइट 7th पर, ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हाइट 7th परसेंटाइल का, लेकिन इसमें क्या चीज हमें रोक रही है करने से? TSH। जब इतना हाई TSH है, चलिए मुझे एक बात बताएं कि ये नॉन केमिकल पैथोलॉजी से क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बाय जस्ट वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ के आप हाइपोथायराइड शॉर्ट स्ट्रेचरनेस को पिट्यूटरी शॉर्ट स्ट्रेचर या ग्रोथ हार्मोन शॉर्ट स्ट्रेचर से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फॉर एग्जांपल एक 7 साल का बच्चा है और आपको डिफरेंशिएट कर, टेस्ट तो आप कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन से आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म को एक क्वेश्चन से? क्या नहीं, स्कूल परफॉर्मेंस वेरी गुड, IQ, ठीक है। याद रखिए जो शॉर्ट स्ट्रेचर हाइपोथायराइड की होती है दैट लीड्स टू लो IQ, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग IQ। जैसे मैं आपको शायद बताया था, each day delay in giving thyroxine leads to certain drop of IQ, ठीक है। तो अगर आप पूछेंगे कि स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी है तो यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि इसमें इसकी IQ कैसी है, ठीक है। तो पारल TSH करके फिर उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। So we come now to the actual topic which is growth hormone. No, it is not the actual topic, sorry. Topic तो हमारा growth disorder ही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ग्रोथ हार्मोन के बगैर फिर बात नहीं बनती। तो ग्रोथ हार्मोन जो उसकी कॉजेज हैं बड़ी, उसकी भी बहुत सारी कॉजेज हैं वो ऑफ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। देयर इज नो सिंगल कॉज। इडियोपैथिक हो सकता है, डैमेज टू द पिट्यूटरी, रेडिएशन, ट्यूमर, ट्रॉमा, इस्केमिक डैमेज। बच्चों में आमतौर पे ये जो सारी कॉजेज हैं ये नहीं मिलती हैं आपको, रेडिएशन, ट्यूमर, ट्रॉमा, इस्केमिक डैमेज, ऑटोइम्यून, ये चीजें नहीं मिलती, ज्यादातर इडियोपैथिक होती हैं या फिर वो फेमिलियल वगैरह होती है, ठीक है, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस। तो सिम्टम्स क्या हैं ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की? ऑफ कोर्स शॉर्ट स्ट्रेचर, एंड वी नो दैट शॉर्ट स्ट्रेचर मींस लेस देन 3rd परसेंटाइल, यानी बच्चा अगर 100 बच्चे हैं क्लास में या पूरी पॉपुलेशन में
अगर 100 के रैंक्स बना लें तो वो बच्चा 3rd रैंक पे आएगा, 3rd रैंक उससे नीचे होगा, ठीक है। और आपको सुन के खुशी होगी कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए भी ग्रोथ चार्ट्स बन चुके हैं जो हमारी पॉपुलेशन के हैं। बाज लोग कहते हैं ये तो बाहर से आए हुए हैं ये ग्रोथ चार्ट्स, नहीं, हमारे अपने ग्रोथ चार्ट्स अवेलेबल हैं और हम यूज करते हैं उनको, ठीक है। तो डिलेड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, रिटार्डेशन का मतलब है कि वेलोसिटी, इट इज समथिंग टू डू with the velocity. The child growth is not speeding up, it is not according to the physiological pattern that जो मैंने बताया था आपको 10 centimeter 5 centimeter per year. Delayed physical maturation भी delayed है, and bone age always go hand in hand with our tests. Our radiological colleagues, they are very helpful in sorting out these cases. So diagnosis depends on the detailed history, detailed physical examination. ये बहुत जरूरी है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसकी ग्रोथ चार्टिंग करना। वही अगेन खासतौर पे जो हमारे बच्चे आते हैं प्राइवेट क्लिनिक से और उन जगहों से, कोई ग्रोथ चार्ट नहीं मेंटेन होता, कोई ग्रोथ वेलोसिटी नहीं होती। इट्स नॉट जस्ट द ग्रोथ हार्मोन टेस्ट व्हिच कैन हेल्प, प्रॉपर चार्ट, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द ग्रोथ चार्ट और ग्रोथ वेलोसिटी कैलकुलेट होनी चाहिए। वेट फॉर द एज और मिड पेरेंटल हाइट। दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मिड पेरेंटल हाइट, यानी माँ बाप की हाइट कितनी है, उसका एक सर्टेन फॉर्मूला है, कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं आप इंटरनेट पे, उससे आप मिड पेरेंटल हाइट निकाल सकते हैं वो कितनी है, और उससे आप टारगेट हाइट निकाल सकते हैं। वही बात है ना कि अगर वाले साहब भी माशाल्लाह 5 फुट के हैं तो बच्चा 6.5 फुट का नहीं हो सकता, या वालदा वाले दोनों शॉर्ट तो नहीं है लेकिन उनकी इतनी ज्यादा हाइट नहीं है, तो बच्चे की हाइट भी उसके मुताबिक ही होगी। तो इससे जो ये कैलकुलेटर्स हैं वो आपको जो टारगेट हाइट निकालते हैं उसमें मिड पेरेंटल हाइट साथ दी होती है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। बेसिक टेस्ट फिर किए जाते हैं जैसे मैंने बताया था आपको, ब्लड सीपी, एक्सरे, यूरिन स्टूल वगैरह, इसमें आप बहुत सारी चीजें हैं, सॉरी TSH है, THS लिखा गया, कैरियोटाइपिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अच्छा, अब जब ग्रोथ हार्मोन आप करते हैं तो इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये बात याद रखिए, वो इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट है। आर्म फोर्सेस में असूल ये है, अगर कोई बच्चे में वाकई सारा कुछ करके फाइनली जब आपको मिलता है कि इसमें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, तो उसका जब तक ITT नहीं होता उसकी ट्रीटमेंट सैंक्शन नहीं होती, व्हिच कॉस्ट आई टोल्ड यू सेवरल मिलियन रुपीस, तो वो उस वक्त तक सैंक्शन नहीं होती जब तक ITT ना किया। तो अभी भी the gold standard for the diagnosis of growth hormone deficiency is insulin tolerance test, and of course it's an invasive test. It should be done very carefully, and we should have all the emergency measures ready with us, because you induce and demonstrate hypoglycemia, ठीक है। जब तक हाइपोग्लाइसीमिया डेमोन्स्ट्रेट नहीं होता ये टेस्ट वैलिड नहीं होता। इसकी वैलिडिटी के लिए हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करना जरूरी है, तो ग्लूकोमीटर इसके लिए साथ होता है और बाकी उसकी इमरजेंसी मेजर्स भी साथ होते हैं। लेकिन एक मैं बताऊं कि बच्चों में जितना छोटा बच्चा होता है उतना उसका हाइपोग्लाइसीमिया से सेफ्टी ज्यादा होती है। तो जब बड़े बच्चे में ITT करना पड़ता है तो मुझे काफी मैं सबको थोड़ा सोचते हैं हम, क्योंकि बड़े बच्चे में उतनी ही वो सेफ्टी कम होती जाती है, छोटे बच्चों में सेफ्टी ज्यादा होती है। तो लेकिन फिर भी बहुत केयरफुली उसकी कैलकुलेट करके, डबल चेक करके, ट्रिपल चेक करके उसकी जो इंसुलिन दें आप वो करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 2-3 कितने हो जाते हैं रफली? नहीं आते हैं, पहले था हाँ, हमने काफी उसको कटेल किया हुआ है अब भी, लेकिन आते रहते हैं। एक वीक में 2 से 3 हाँ, वीकली 2-3 आ जाते हैं। और अगर आप जब आएंगे इंशाल्लाह अटैचमेंट पे आना चाहते हैं तो यू कैन विटनेस दैट। इसके अलावा हमने जो प्लान किया है 5-6 मई को जो कोर्स हम यहाँ करा रहे हैं, अच्छा वो बाय द वे 1 वीक हमने पोस्टपोन किया कोर्स, उसकी सेकेंड डे पे करण नवीद और करण सुजाजा आपको डिटेल में ये डायग्नोस्टिक एंडोक्रिनोलॉजी बताएंगे।
वर्कशॉप है डायग्नोस्टिक एंडोक्रिनोलॉजी की, ठीक है। तो उसमें ये टेस्ट आपको सारे आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट होंगे। मे बी ITT तो नहीं हम करेंगे, लेकिन आपको सारा उस किसी न किसी तरीके से उसको बताएंगे हम। फिर आर्जिनिन भी की चीज आ सकती है। हम जो कर रहे हैं 3 टेस्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं जैसे मैंने बताया, लिवोडोपा करते हैं और ITT करते हैं, लेकिन बाकी सारे क्लोनिडीन वगैरह भी अवेलेबल है। और आजकल जो लेटेस्ट है और विच इज रिकमेंडेड नाउ टू रिप्लेस ITT इज ग्लूकागॉन स्टिमुलेशन टेस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी इश्यूज, क्योंकि वो सेफर है एज कम्पेयर टू दिस। और ये भी बड़ा ट्रिकी है कि हाउ ग्लूकागॉन कैन यूज हाइपोग्लाइसीमिया, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन, हाँ ये अपोजिट होते हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा चूंकि फर्स्ट ईयर है इसलिए हम डिटेल में नहीं इसमें डिस्कस कर रहे। तो लेकिन ग्लूकागॉन भी यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस। एक्चुअली ग्लूकागॉन जो है ना, जब देते हैं तो एक उसके रिएक्शन में इंसुलिन निकलती है और फिर हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस होता है, एंड दैट हाइपोग्लाइसीमिया इज सफिशिएंट फॉर ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन, ठीक है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है, और आजकल उसको रिकमेंडेड किया गया है टू रिप्लेस इंसुलिन। Next question is very interesting, and that is the term growth failure. Growth failure किसको कहते हैं, ठीक है। ये इसमें आपके आंसर्स काफी वेरिड थे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं देखूं जरा आप लोग क्या कहते हैं। देखेंगे इनके आंसर। सी। अच्छा जी, आप लोगों ने क्या लिखा जी? नादिया सी, मिसबा वेरी गुड। अच्छा, इधर से सबा सी आ रहा सर, बी लिखा है। ये सी वाले कैसे पहुंचे आखिर यार? मैंने तो ये बड़ा अपनी तरफ से स्पिन गुगली मारी है। हाँ, नेट से। अच्छा, गुड गुड जी। अच्छा 6, अभी का आते हैं 6 पे भी। एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के लिए बहुत ही जरूरी चीज है कि उसकी ग्रोथ वेलोसिटी आप देखें। द ग्रोथ वेलोसिटी शुड बी लेस देन 5 सेंटीमीटर। अगर ग्रोथ वेलोसिटी उसकी ठीक है, देन इट इज नॉट ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। अब प्रॉब्लम इसमें हमारी ये है कि ये लोग मॉनिटर नहीं करते, ठीक है, और डायरेक्टली तो हमारे पास भेज देते हैं। और ये एक चीज है जिसपे अभी हम कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है हमने, कि विदाउट knowing the growth velocity we do carry out growth hormone test, because वो तो फिर 6 महीने और डिले हो जाते हैं, ठीक है, या कम से कम साल करना पड़ेगा आपको। लेकिन एकेडमिकली और प्रोफेशनली it should not be done until and unless growth hormone the height velocity is less than 5 centimeter. इसके बगैर आपने नहीं करना। अच्छा, फिर भी वो नहीं है, फिर भी वो उसको नहीं ग्रोथ फेलियर नहीं कहते। इस पे काफी डिस्कशंस होती रहती हैं हमारी कि बोन एज लेस देन 20, लेकिन इवन देन इट इज नॉट कॉल्ड ग्रोथ फेलियर बिकॉज क्या वजह है इसकी? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डिले। वही तो ये बात कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। नहीं, उसको फिर भी नहीं कहते, उसको ग्रोथ फेलियर नहीं कहते। हाँ, so growth failure, the height for age curve has deviated downwards across 2 major height percentiles. एक और डेफिनेशन ये है कि 2 जो परसेंटाइल लाइंस हैं उसको क्रॉस कर जाए। बहरहाल ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये भी एक डेफिनेशन है कि 25th परसेंटाइल से 10th परसेंटाइल पे चली जाए। और इफ द चाइल्ड इज ग्रोइंग स्लोअर देन द फॉलोइंग रेट्स, ये उसके एक्चुअल रेट के साथ है। एज अगर उसकी 2 to 4 ईयर है तो हाइट वेलोसिटी इज लेस देन 5.5 सेंटीमीटर। एज 4 to 6 ईयर है तो लेस देन 5 सेंटीमीटर। एज 6 years to puberty है तो फिर 4 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू एज बारह ये वेरी करेगा। तो उस क्वेश्चन में चूंकि एक एज दी हुई थी तो इसलिए उसके साथ था जी। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हाई परसेंटाइल से लो पे आ रहा है तो
फिर आप उसको मॉनिटर तो जरूर करेंगे ना, और जब उसकी 3rd परसेंटाइल से नीचे आएगी वो तो होना जरूरी है, 3rd परसेंटाइल से कम होना तो जरूरी है। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई एकदम रिटार्डेशन हो गई है ग्रोथ की, जो वेलोसिटी एकदम कम हो गई है, तो यू शुड बी मॉनिटरिंग इट वेरी केयरफुली। उसको भी ग्रोथ फेलियर उसको नहीं कहेंगे जब तक कि उसकी लेस देन 3rd परसेंटाइल नहीं आएगी। जो इतने सेंटाइल नीचे आएगा तो सारा इसका मतलब कि कोई कॉज हो रही है, तो ये तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसको फिर आप मॉनिटर करें, तो जब वो 3rd परसेंटाइल से नीचे वाकई आ जाए तो फिर आप कर सकते हैं। 3rd परसेंटाइल से नीचे आने से पहले वो ये डेफिनेशन फिट इन कर जाएगा, वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, वेलोसिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इसलिए तो मैं अर्ज किया कि इसको आप मॉनिटर जरूर करना है, मॉनिटर के बगैर नहीं आपने करना। तो जब वो 3rd परसेंटाइल से नीचे वाकई आ जाता है, हो सकता है कि कोई ट्रांजिटरी फैक्टर्स हो या कुछ ऐसा हो, तो जो क्राइटेरिया है शॉर्ट से वो तो वही है 3rd परसेंटाइल। सर एक जी क्वेश्चन है कि हार्मोन डेफिशिएंसी से जो बड़ी क्लोजली रिलेटेड कंडीशन है वो फैमिलियल ग्रोथ। जी जी फैमिली ग्रोथ शॉर्ट से चलो, हाँ हमने उसको डिफरेंशिएट किया हाँ बिकॉज़ उसका इंसिडेंस भी बहुत ज्यादा जी जी फैमिलियल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। वेरी वेरी कॉमन बिकॉज़ वी नीड टू डिफरेंशिएट हाँ इस ग्रोथ हाँ हाँ सर बोन एज का जहां तक ताल्लुक है जो हम बायोलॉजी पे कराते हैं, तो उसमें हाउ डू वी डिफरेंशिएट? हाँ ये भी आप क्वेश्चन भी आएगा, ये करनामी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि फैमिलियल जो कि बहुत कॉमन है उसको कैसे डिफरेंशिएट। एक बात याद रखिए कि फैमिलियल इज नॉट ए ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर, फैमिलियल शॉर्ट स्टिचनेस इज नॉट ए ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर, दिस शुड बी क्लियर, ठीक है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट डीडी है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, कॉन्स्टिट्यूशन डिले, एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिले इज ऑल्सो नॉट ए ग्रोथ हार्मोन। ये दोनों फिजियोलॉजिकल वो हैं, दे आर नॉट फिजियोलॉजिकल कह लें या पार्टली पैथोलॉजिकल है, बट दे आर नॉट ग्रोथ हार्मोन। पहली तो बात ये है दीज टू कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट डीडी ऑफ जीएचडी, बट दे आर नॉट जीएचडी। अब इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं, इन दोनों को वेरी गुड बोन एज से डिफरेंशिएट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन डिले है उसमें बोन एज डिलेड होती है, डिले का मतलब है कि वो कम हो रही है, ठीक है। और दो जो ये है अपना फैमिलियल है उसमें बोन एज ठीक होती है, बिल्कुल बोन एज बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है। तो और उसकी वेलोसिटी भी ठीक होती है, लेकिन की डिटरमिनिंग फैक्टर ये मैं एग्जैक्टली इसीलिए क्वेश्चन भी ये दिया है कि ग्रोथ फेलियर किसको कहते हैं। ग्रोथ फेलियर जो है ना वो वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन एक जो एब्सोल्यूट क्राइटेरिया है शॉर्ट स्टिचनेस का वो 3rd परसेंटाइल है। ये दो जरा डिफरेंट चीजें हैं। 3rd परसेंटाइल वो है ग्रोथ हार्मोन का बेसिक क्राइटेरिया ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का, और ग्रोथ फेलियर आप टर्म वैसे भी यूज कर सकते हैं कि इसकी अब ग्रोथ फेलियर होगी है बीच में कहीं भी, तो वो उसका मतलब ये वो जो क्राइटेरिया अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये अभी क्वेश्चन भी आएगा उसमें हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डिले है उसमें बोन एज कम होती है, ठीक है, एंड इनफैक्ट इट्स अ गुड साइन, ठीक है। अगर उसकी बाकी चीजें ठीक है इट्स नॉट अ बैड साइन, बिकॉज इसका मतलब उसमें पोटेंशियल है कि वो कैचअप कर लेगा। अच्छा अब एक और क्वेश्चन है आपसे सीनियर लोगों से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डिले है उसमें वेलोसिटी कैसी होती है। उसमें वेलोसिटी नॉर्मल होती है। अब उसमें वेलोसिटी नॉर्मल होती है कॉन्स्टिट्यूशन डिले में और फैमिलियल में वेलोसिटी नॉर्मल होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन डिले है वो डिले फर्स्ट 3 इयर्स में हुआ होता है, फर्स्ट 3 इयर्स में उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई होती है, ठीक है। और वो पैरेलल, वो कर्व पैरेलल होती है नॉर्मल के, पैरा नॉर्मल कर्व कहते हैं उसको, वो नॉर्मल चल रही होती है जो नॉर्मल ग्रोथ है, और आखिर में जाके वो कैचअप कर लेती है, वो उसको मेकअप कर लेती है, ठीक है। लेकिन उसकी अल्टीमेट हाइट कितनी होनी है वो उसकी मिड पेरेंटल हाइट पर डिपेंड करती है, फैमिली पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसी तरह ये पीईटी में एक बच्चा है या है आप वो कछुआ और रैबिट कह लें, वो बहुत पीछे है और एकदम वो आखिर में जाके स्प्रिंट मार के बिल्कुल बिल्कुल।
स्लो स्टार्टर, बिल्कुल, थैंक यू नामिर, ये मैं वर्ड ढूंढ रहा था। जो कॉन्स्टिट्यूशन डिले है, दिस इज स्लो स्टार्ट, फर्स्ट ईयर में उसका डिले होता है, बाद में वो ठीक होते हैं और आखिर में जाके कैचअप भी कर लेते हैं, ठीक है। जो फेमिलियल है वो, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उसकी जो पेरेंटल हाइट है वो उसके मुताबिक उसकी फाइनल हाइट होती है। सो ये हो सकता है कि जो फेमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर वाला है वो उसकी अल्टीमेट हाइट कम हो, 3rd परसेंटाइल से कम तो नहीं होगी, मे बी 25th तो फिर हिल गया। अच्छा ठीक है, 25th परसेंटाइल हो कितनी हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन डिले है उसकी अल्टीमेट हाइट नॉर्मल होती है, ठीक है। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी है। ये एक अभी हम करेंगे इडियोपैथिक शॉर्ट स्ट्रेचरनेस, ISS। अब बाज लोग ये दोनों चीजें जो है ना, ये फेमिलियल एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिले को ISS में शामिल करते हैं, इडियोपैथिक शॉर्ट स्ट्रेचरनेस। बाज कहते हैं नहीं, ये सेपरेट है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है इसमें। यू कैन डू इट और यू कैन डोंट डू इट, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हाइट वेलोसिटी पे हम आते हैं। हाइट वेलोसिटी, ये चार्ट्स यूं अमेरिकन हाइट वेलोसिटी के चार्ट्स हैं। वो ये जो पीछे जरा करें, ये जो चार्ट्स है ना, ये हाइट के चार्ट नहीं है, प्लीज बी केयरफुल, दे आर नॉट चार्ट फॉर हाइट, दे आर चार्ट फॉर दी हाइट वेलोसिटी, ग्रोथ वेलोसिटी के चार्ट्स हैं ये, ठीक है। तो हाइट वेलोसिटी या ग्रोथ वेलोसिटी इज ए हॉलमार्क ऑफ पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्ट्रेचरनेस, ठीक है। ये जो हमने दो कंडीशन डिस्कस की, फेमिलियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, उसमें हाइट वेलोसिटी ठीक होती है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, ठीक है। और मुश्किल काम हम नहीं करते जिसमें सब्र, आप हमारी नेशन का ना हॉलमार्क जो है ना, वो बेसब्री है। यानी वो सड़क पे भी हॉर्न दे रहे होंगे, अभी येलो लाइट होने वाली है तो चल पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं चल रहे, आप बड़े कानून के पाबंद हैं, तो खास तौर पे मेरा जो शहर है लाहौर, उसमें बहुत ज्यादा बेसब्री है, तो पीछे से हॉर्न दे रहे होंगे कि चलो इशारा बंद खुलने वाला है, आवाजें चोरी कर देते हैं। तो जो जिस काम में सब्र होता है वो नहीं होता हमसे, तो हाइट वेलोसिटी करने के लिए सब्र करना पड़ता है थोड़ा सा। पेरेंट्स भी बेसब्रे होते हैं, हमारे फिजिशियन भी बेसब्रे होते हैं, उनको डर होता है कि 1 साल के बाद बुलाया तो ये दूसरे चाइल्ड फर्स्ट के बाद चला जाएगा मरीज, तो ये, लेकिन ये सब्र की बात है। हाइट वेलोसिटी थोड़ा सा आपको साल एक इंतजार करना पड़ता है, फिर आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है। बहरहाल टीचिंग में ये है कि हाइट वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, द ग्रोथ वेलोसिटी। If height velocity is normal in a short stretch child, it is usually due to non-pathological causes, familial short stature और constant delay, ठीक है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, constant delay को साथ puberty भी कह देते हैं, constitution delay in puberty और growth, puberty भी बात का delay होती है इनमें। If HV is grossly low, all pathological causes should be excluded before starting growth hormone investigation. Even अगर हाइट वेलोसिटी भी कम है, बहुत कम है, फिर भी आप बाकी सारी कॉजेज आप रूल आउट करेंगे, जो भी हमने 10 पढ़ी कॉजेज। कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6। A 16-year boy was followed at a growth clinic for 10 years. At presentation, his height and weight were 3rd and 39th percentile, respectively. His growth velocity remained from 3 to 4.5 centimeter per year during these years. Answer पहले ही आ गए। His puberty was also delayed, but now his height is absolutely normal. बड़ा आसान हो गया मेरा ख्याल है, ये आपने पढ़ लिया है। हाँ, ये क्या है जी? कॉन्स्टिट्यूशन डिले, ठीक है। अब आपको मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशन डिले आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आसान सवाल है और मेरा ख्याल है ये सब ने आंसर इसका ठीक लिखा था, इधर से भी आ रहे हैं धड़ाधड़ आंसर। A 12-year-old girl has been presented for the investigation of growth disorders. Which of the following tests should be additionally carried out in this patient, which is not routinely done in boys for the investigation? लड़कियों में वैसे ये टेस्ट जरूर करना चाहिए, ये हम करते नहीं है, मैं एडमिट करता हूँ, हर बच्ची में नहीं करते, लेकिन ये जरूर करना चाहिए, खासतौर पे अगर उसके कुछ फीचर्स हों तो फिर जरूर करना चाहिए। और वो कौन सी साइट है? अच्छा जी, अब मैं जिससे पूछूंगा उसने आंसर करना, जिससे मैंने पूछना है ना, और आप लोग भी लिखें इस पर।
जी अहमद साहब आप बताइएगा के साइटोजेनेटिक्स क्यों सिर्फ लड़कियों में करते हैं? कौन सी डिजीज आपके जहन में है जिसको आप रूल आउट करना चाहते हैं? हाँ ना ना बिल्कुल ऑपोजिट है, उल्टा। शिफा इंटरनेशनल वालों को मैं लिखता हूँ हैं बेटा तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई मसला नहीं। ये टर्नर दी क्लाइंट फिल्टर तो जाइंट होता है, वो तो बहुत लंबा होता है और वो बॉय होता है ना क्लाइंट फिल्टर बॉय होता है और टर्नर गर्ल होती है, और टर्नर स्मॉल स्ट्रेचर होता है और क्लाइंट फिल्टर रिजली टॉल। चलो आप एक चांस और देते हैं आपको। आप टर्नर की मुझे साइटोजेनेटिक बता दो, यानी उसकी क्या क्रोमोसोमल। शाबाश, ये तुम्हारा पिछला आंसर इसने ठीक कर दिया, 45X हो। चलो और कौन बताएगा इधर से जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हो? शुजात ही बता दे, क्लाइंट फिल्टर की क्या होती है साइटोजेनेटिक्स? 47XYY। वेरी गुड, ये इधर से भी आंसर है 47XXY, 47XX। और क्या हो सकता है इसमें? नहीं, 48XXXY, 49 ये मोज़ेक होता है, इसमें बहुत सारी हो सकती हैं। यूजुअली इट्स ए मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब है मिक्स इसके सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। So delayed or advanced bone age is defined as 2 SD or more below or above the mean। यानी bone age का इससे क्या ताल्लुक है? ये स्लाइड bone age से रिलेटेड है, ठीक है। Approximately 20% below or above the chronological age. This translates to a difference between bone age and chronological age of approximately 12 months between 2 and 4 years of chronological। बहरहाल ये delayed bone age के स्लाइड इसमें सारा बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये कि प्रेडिक्टेड हाइट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम मिड पेरेंटल हाइट। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में ये आपको बताया कि मदर फादर की हाइट लेके और फिर उसको प्लस 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह गर्ल्स बॉयज के लिए आप अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। बॉयज में प्लस 13 सेंटीमीटर करते हैं और गर्ल्स में माइनस 13 सेंटीमीटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज IGF एंड IGF-BP? जी डॉक्टर हिना जमाल, IGF सुना नाम? सबा जमाल, सबा अंजुम, अंजुम नहीं है, सबा अंजुम। अच्छा, व्हाट इज IGF? वो लिखा हुआ, व्हाट इज IGF एंड IGF-BP3? नाम सुना हुआ है? वेरी गुड, वेरी। एंड BP? Binding protein. So the development is not very new, but it's a very important development in the study of growth hormone metabolism or the growth metabolism and many other things is discovered wonderful proteins. One is insulin-like growth factor and the other is insulin-like growth factor binding proteins. Insulin-like growth factors, they are 7 up till now, from IGF-1 to IGF-7, but for our today's topic, most important is IGF-1. This is the first line for assessing growth hormone. So test for screening and treatment and monitoring. तो ये screening के लिए भी use होना चाहिए और monitoring के लिए। Half life 22 hours, इसकी बड़ी लंबी half life होती है, ठीक है। और IGF-1 level are lower in children, ये इसकी age से बहुत ताल्लुक होता है, तो इसके बड़ी carefully हमें इसका age के साथ करना पड़ता है, ठीक है। तो IGF रेफरेंस रेंज हमने स्टार्ट किया, हमने IGF-1 IGF-BP3 अब हम यहाँ कर रहे हैं, और हमने इसको फर्स्ट लाइन टेस्ट बनाया फॉर ग्रोथ हार्मोन। कोई भी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो या एक्रोमेगली वगैरह हो तो शुड बी दी फर्स्ट लाइन टेस्ट, लेकिन ये दोनों टेस्ट इकट्ठे किए जाएं। अब दोनों इकट्ठे करने का क्या फिलॉसफी है? इसलिए है कि आप कुछ एक की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दूसरे की प्रॉब्लम्स हैं, तो दोनों को जब इकट्ठा करते हैं तो वो पोटेंशिएट करते हैं एक दूसरे को और दे गिव बेटर रिजल्ट्स। सो IGF-1 reference range must therefore always be interpreted within the context of the patient age. Pregnancy and puberty may be associated with abnormally high IGF-1. Malnutrition, estrogen, hypothyroidism, liver disease may lower IGF-1.
most approximately 80% circulating IGF-1 is bound to IGF-1. So IGF-1 like growth factors binding proteins, they are the second test जो कि इसके साथ किया जाता है, और इसमें BP3 हम करते हैं. ये भी बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, उनमें से हम BP3 जो वो करते हैं. तो इनफैक्ट इट इज फिजियोलॉजिकली इट इज कैरियर फॉर IGFs, बट वी यूज इट फॉर द डायग्नोसिस. ठीक है जी, क्या क्वेश्चन है? IGF-1 they are 7 types. प्रोटीन्स भी सेवरल टाइप्स की होती हैं, प्रोटीन की भी काफी टाइप्स होती हैं, मेरे ख्याल ये 5-6 टाइप्स होती हैं. प्रोटीन की भी बहुत टाइप्स होती हैं और IGFs की भी बहुत टाइप्स होती हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट जो आपको आनी चाहिए वो ये कि IGF-1 एंड IGF-BP3, ये तो मुश्किल नहीं है ना, इतना याद रखें. IGF-1 एंड IGF-BP3, तो ये दो टेस्ट जो हैं वो एडिशनल टेस्ट हैं फॉर ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, ये एक एनिमेशन छोटी सी दी है कि IGF का काम क्या है. एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ IGF. तो बाकी जो स्केलेटन पे सारा एक्शन है दैट इज थ्रू IGF, और IGF का कैरियर जो है IGF-BP है. ठीक है, तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली बोन्स पे एक्ट नहीं करता, इट एक्ट्स थ्रू दिस. So if because of any reason, any other reason, IGF-BP3 is are not working, or there is a problem in the liver, next one, there is a problem in the liver, then this will not work. ठीक है, so these BPs and IGFs, they are the sort of transmitters or the transmitting line of the growth hormone. So किसी लिवर डिजीज में अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल प्रेजेंट एज शॉर्ट स्टेचर, और इसके बड़ी जबरदस्त थैलेसीमिया हो सकता है ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल हो, लेकिन वो लिवर में चूंकि हेमोक्रोमेटोसिस है तो वो प्रोड्यूस नहीं हो रही. ठीक है, इसका मतलब है इसके एक्शन के लिए BP3 के साथ कंबाइन होना जरूरी है. इसका प्रोड्यूस के तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट टू टेस्ट टू स्क्रीन GHD? IGF-1, IGF-BP3, ये मैंने दोबारा लिखा है. ठीक है, तो कोई भी आप ग्रोथ हार्मोन कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट स्टेचर है, चाहे फाइनली जब आप पहुंच गए आपने सब कुछ एक्सक्लूड कर लिया, नाउ यू वांट टू डू द ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, उसको आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले टेस्ट आजकल ये है, एंड दिस इज द लेटेस्ट रिकमेंडेशन इन अप टू डेट. अगर ये दोनों टेस्ट बिल्कुल क्लियरली नॉर्मल हो, आप शॉर्ट स्टेचर चाइल्ड है आपके पास, तो यू एक्सक्लूड ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी. ठीक है, अगर दोनों एबनॉर्मल हो या एक एबनॉर्मल इक्विवोकल आ रहे हो, आपको क्लियर नहीं पता चल रहा, then you proceed to the growth hormone testing. लेकिन अगर ये क्लियर हो तो फिर आपको जरूरत नहीं होती करने की. ठीक है, सो इट्स अ वंडरफुल थिंग. और इसका एडवांटेज क्या है, एक बात शायद मुझे शुरू में बतानी चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन बेसल लेवल का कोई फायदा नहीं. बहुत दफा हमारे पास जीपी ग्रोथ हार्मोन लिख के भेज देते हैं, सिर्फ उस सिंगल टेस्ट का कोई फायदा नहीं, बिकॉज हार्मोन ऑसिलेशन वन है. जैसे इसका जो हाफ लाइफ है 22 आवर्स है, तो इसको आप बेसल लेवल पे भी कर सकते हैं, इसको विदाउट स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं. तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेपर भी इस पे पब्लिश हुआ था, हमने इस पे आज से 8-10 साल पहले 15 साल पहले काम किया था. तो ये बहुत अच्छे टेस्ट हैं. ठीक है, लेकिन थोड़े कॉस्टली हैं इसलिए, लेकिन यू सेव द चाइल्ड फ्रॉम अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. Okay, ji. An 8-year child is being investigated for short stature, less than 3rd percentile. His growth profile shows IGF-1 low है और BP3 डिक्रीज है और ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल है. ये क्या चीज है जी? इनसेंसिटिविटी.
ठीक है, इंसेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस, इसको ग्रोथ हार्मोन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। बहुत सारी चीजों में आपने पढ़ा है एंडोक्राइन में, जब सब कुछ ठीक होता है तो एक रेजिस्टेंस आ जाती है। वो रिसेप्टर्स जो उस हार्मोन के होते हैं वो अगर डेफिशिएंट हो तो हम उसको ग्रोथ हार्मोन या जो भी हार्मोन है उसकी रेजिस्टेंस कहते हैं। जी नेक्स्ट। अब इसका कैसे आप कैसे डायग्नोज करते हैं, उसके लिए आपको ये टेस्ट करना पड़ता है IGF-1 और BP3। If you have got those tests and they are low, whereas growth hormone is normal, so it gives a clue or diagnosis of growth hormone insensitivity. And it is very common in thalassemia. Thalassemia में इस तरह की पिक्चर आपको मिलती है। Although thalassemia में पिट्यूटरी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है बाद में और ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ भी कम हो जाता है, लेकिन शुरू में आपको इस तरह की पिक्चर भी मिल सकती है। So growth hormone is insensitivity is characterized by elevated level of GF growth hormone accompanied by decreased level of IGF-1 and BP3. Most common form of insensitivity is Laron syndrome. Laron syndrome इसका एक एग्जाम्पल है जिसके 300 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 934, year female suspected of acromegaly has been referred to you to rule out the disease. Which of the following is the single most important test? Again, IGF-1. इसका भी जो आजकल स्क्रीनिंग टेस्ट है एक्रोमेगली का, वो IGF-1 है। जो इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन है, इट कैन प्रेजेंट आइदर एज पीछे वाले either as gigantism or acromegaly. If it's the excesses during the childhood period, it leads to gigantism. ठीक है, और फिर उसमें सारे हाइपरपिट्यूटरिज्म के डायबिटिक भी होते हैं बेचारे, काफी इनकी मुश्किल लाइफ होती है। ठीक है, तो लेकिन ज्यादा कॉमनली जो प्रेजेंटेशन है वो एक्रोमेगली की है। एंड डॉक्टर आमना तारिक इनकी ये स्लाइडें हैं जिन्होंने अभी पिछली दफा आपसे फेस किया। सो एक्रोमेगली का मैं ये कहा करता हूँ कि जो फुल ब्लोन एक्रोमेगली होती है, इट इज वेरी इजी टू डायग्नोज। ये पेशेंट की चेहरे पे लिखा होता है, ठीक है, कि वो उसको एक्रोमेगली है। आप 2-3 मरीज देख लेना एक्रोमेगली के, चौथा पांचवा आप खुद डायग्नोज कर लेते हैं। ठीक है, और वो मोटे हों मोटे। तो एक मैं नॉन केमिकल पैथोलॉजी से पूछता हूँ कि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन है जो पेशेंट से पूछने हैं आपने। क्या क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपको आइडिया होगा? जी नादिया, शूज का साइज, वेरी गुड वेरी गुड। ये कहीं बचपन का पड़ा हुआ है? अच्छा, पेशेंट देखा आपने। जी मिस बा, दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं शूज साइज के अलावा? हेड साइज नहीं, हेड साइज नहीं, हेड साइज नहीं। और रिंग, आपकी मंगनी वाली अंगूठी जब छोटी हो गई, ठीक है, आप ये हाथ में पूरी नहीं आ रही, ठीक है, तो ये है। लेकिन अव्वल तो मैं बता रहा था, ये मुझे शायद है हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उस दिन बता रहे थे कि सर ये जो फीचर्स वाले हैं वाकई वो तो बहुत आसान है, लेकिन असल मजा है कि आप उनको फीचर्स आने से पहले सस्पेक्ट करें और आप फिर उनको डायग्नोज करें। तो वो उसने यहाँ पर हमें 2-3 पेशेंट भेजे हैं और उसने डायग्नोज किया है, विच इज वेरी नाइस थिंग रियली। तो अगर फीचर्स नहीं है तो फिर आपका टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पहला टेस्ट क्या है? वही IGF-1 BP3। तो डायग्नोसिस क्लिनिकल है, और उसके बाद ये दोनों टेस्ट हैं, और अगर ये दोनों इक्विवोकल आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं, देन यू डू दी जो फाइनल टेस्ट है इसका, वो अगेन विद अस which is OGTT with 75 ग्राम ग्लूकोज। लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा सैम्पलिंग करते हैं, इसकी 1 आवर 2 आवर 3 आवर तक सैंपल करते हैं। ठीक है, और 2 आवर भी कर सकते हैं, 3 आवर भी कर सकते हैं, और साथ हर सैंपल में आप ग्लूकोज लेते हैं और साथ ग्रोथ हार्मोन लेते हैं। तो आप मुझे केमिकल पैथोलॉजिस्ट को बताएं, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग टू डायग्नोज एक्रोमेगली ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट? पैराडॉक्सिकल राइज, वेरी गुड। डॉक्टर एनी हमारी सेकेंड ईयर ट्रेनिंग, उन्होंने ये बताया पैराडॉक्सिकल राइज का मतलब क्या है?
ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सप्रेस होने की बजाय ज्यादा हो जाए, यानी फिजियोलॉजिकली ग्रोथ हार्मोन इस सप्रेस पर काबू है। वो बच्चे को चॉकलेट याद आ गया ना, बच्चे को चॉकलेट मैंने मना किया नहीं देनी, तो ये वही है कि इसी ग्लूकोज को आप यूज करते हैं देखने के लिए कि ग्रोथ हार्मोन स्प्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। नॉर्मल लोगों में ग्रोथ हार्मोन स्प्रेस हो जाता है, एक्रोमेगली में या तो स्प्रेस नहीं होगा या पैराडॉक्सिकली राइज हो जाएगा। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट साइन। चलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ ये चीजें ताकि टाइम आप कम ज्यादा ना लूं। तो वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये जरा बताइए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन ये है बहुत पुराना क्वेश्चन। तो अगर तो आपके सीनियर्स ने आपको बता दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने खुद किया है तो फिर वंडरफुल है। क्या लिखा था इसका? नौरीन ने कोई आंसर नहीं दिया। सी सी है? कैसे सी किया है? बिल्कुल ठीक है, सी सही है, लेकिन कैसे? हाँ, IGF-1 रेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप इसको फिर पिट्यूटरी एडिनोमा क्यों नहीं कहते? MRI नॉर्मल है, MRI नॉर्मल, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इसमें ट्रिक था कि एक्रोमेगली कैन बी ड्यू टू द एक्स्ट्रा पिट्यूटरी एनलार्जमेंट या डिजीज, ठीक है। चलिए जी, बस वी स्टॉप इट हियर। मैं प्रेजेंटेशन भेजूंगा, उसमें कुछ और सिनेरियोज भी हैं। जब इंसान प्रेजेंटेशन बना रहा होता है तो चीजें डालते जाते हैं, लेकिन टाइम के साथ हमने देखना होता है इसको। तो ये मैंने डिस्कस करा भी सिनेरियोज, ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो आपका? आपको शेड्यूल सॉरी नहीं अभी तक मिला, लेकिन इसमें हम जो है ना परसों हम करेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और मंडे को IMD नैरेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्योंकि वेडनेसडे